ऐसा ही कट करके आई एम मेकिंग इट एज अ, सी माई सरफेस में भी जैसे सरफेस में भी एनीथिंग, इट इज सीम लाइक या चिप्स, सेम लाइक चिप्स, इट मे बी ऑफ एनी शेप, कहीं पे हाइट ज़्यादा रहेगी कहीं पे कम, इट मे बी एनीथिंग, करेक्ट। सो फंक्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम लोग फंक्शन पे फोकस नहीं करते, वी जस्ट फोकस ऑन दिस गाय ई। लेटर ऑन जस्ट इंटीग्रेशन किया तो इट विल गिव मी द एरिया, इट विल गिव मी द वॉल्यूम अंडर दैट कर्व। Yes, so to calculate volume and that area, you can do that. If you are say to find the area, you just find the double integral, so put 1 here. If you have to find the volume, you just find the double integral over the function. Okay. Then next was actually to solve this double integral. Now do you see that अभी इधर कुछ भी theorems नहीं है, everything is just solving and solving. Like suppose we are given a function f of xy, that is the function, you can take anything, main the thing is you're bounded by suppose we are saying, I think हम लोगों ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं. Suppose on x axis if I am saying 0 to 2, on y maybe this question also we have done 2x and x square, something like this. So this is your function which is bounded by e, and this is your e, and sub function you can consider it as x plus y plus xy, whatever it may be, function कुछ भी रहा अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. So we are required to find volume and volume of this function in this region, correct? Or if you have to find area of this, then what we can do that. The first thing is that we need to decide the double integral. So जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले ड्रॉ करने का. So how to draw this? The first function is y equal to x square. Do you see that? What will be the graph of that? Y equal to x square का ग्राफ क्या आएगा? It will be a parabola, something like that. ऐसा कुछ parabola, maybe I'm considering it. And second one is y equal to 2x, that is just a straight line. So what is the bounded region? This is your bounded region. You see that? Correct. अभी सॉल्व कैसे करते हैं, याद है तुम लोग को? On the x-axis, it is bounded by 0 to 2. So we just first need to find the end points or just intersection point. What are the intersection point? How to find the intersection point of two curve? How to find intersection point of two curve? Yes, anyone? Somebody tell me how to find intersection point of two curve. So here what is my two curve? Means that point which is satisfied by both the curve. So just put them equal. See what is my curve? Y equal to x square, and second y equal to 2x. Just put x square equal to 2x. Correct? Just solve it. What do you think what you will get? X equal to 0 and x equal to 2 are the 2 point. So if I put x equal to 0 in my curve, uh, then I get y equal to 0. So intersection point 1 is 0 comma 0 and other is 0 comma 2, something like that. Correct? So what will be your answer? Yes, volume will be double integral. और if I say I1 बोलता हूँ मैं इसको, so this is 0 to 2 and this is what is limit. See इधर अभी कैसे करते हैं हम लोग, याद है तुम लोग को? What is my entry function? I just insert a ray, and what is my entry function? Exit function. Entry function जो आएगा वो मेरा लोअर लिमिट रहेगा. Entry function क्या है? Parabola, that is y equal to x square. So it is x square, and what is exit function? Is this y equal to 2x. And here your function will be as it is, जो भी function है, let us keep it here only. And what is this?
This is bounded by dy and this is dx. Correct? This is how we solve. Correct? आई थिंक डबल इंटीग्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने पहले ही सॉल्व किए हैं. इन द स्टार्टिंग के मंथ में हम लोग ने यही सब किया. सो मोस्टली जो लोग नए आए हैं, आई थिंक 2 लोग हैं, तो उनके लिए आई शुड repeat it. I may be having the recording. If I find it, then I will upload it there and you can watch it. Others जिन्होंने नहीं अटेंड किया है that lecture. Okay. So we have completed the theory part of our double integration actually. So in the theory part we have there was nothing theory actually, just Riemann criteria was there and some property was there, and then Fibonacci theorem over rectangle was there, and over that bounded region Fibonacci theorem is not included in your syllabus. If you are doing differential geometry in your MSc, then you will get that. Yes. Next was change of variable. I think I have already did that part also. What do you mean by change of variable? Yes. फंक्शन अगर dx dy है, सो तुमको इसको चेंज करना है dy dx में. In some case dx dy is difficult to solve, but dy dx will be easy to solve. So that's why we use change of variable. तो उसमें करना क्या होता है? Can somebody tell me the steps? What to do in that case? अगर मुझे change of variable apply करने हैं तो क्या करने का? सिर्फ बहुत बार एग्जाम में आएगा sketch the region. So you should be thorough with your graph also. How to draw parabola, ellipse, and there's something like that, circle. So many functions are there, so many graphs are there, you should know about that. So if you are asked to find the change of see, if I'm saying the same question, no, I should, yeah, if this is dy dx, I want to change this at dx dy. Can somebody tell me the steps? What should I do? Yes. So here it is dy dx. Can you see that for dx it is just points 0 to 2? You see that? Now if I want to find dy here, so I need the condition on dy to be the number. So what is the number for y-axis? 0 to, what do you see that? It is again 2, maximum value is 2. So this is again 0 to 2, and your now ray will be something like this. Correct? You just need to put entry function and exit function. What is your entry function? This is y equal to 2x, but in this case it will be value of x. So x is y by 2. And what will be this? X will be root y. The second function is root y. So can you see that what will be your double integral? If I write it here only, that will be 0 to 2. Here it will be dy. Then here it is dx and it is function. For dx the value is x equal to y by 2 to x equal to root y. Do you see this? This is iterated integral 2. This is I1, this is I2. What does the Fibonacci theorem say? Fibonacci theorem says that I1 and I2 must be equal if your function is continuous over a bounded region. Bounded region is important in our case. Yes, do you see that? Next पैरामीट्रिक फॉर्म किया था क्या हम लोग ने? Yes, if I change my integration with the parametric form, polar coordinate बोलो तो अगर,
double integration in polar form, polar coordinate form. So in that case क्या करना रहता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करो, y इक्वल टू आर साइन थीटा, then what we just need to find see if this is your double integral dx dy something, correct, at y it will be some limit and at x, so this will be changed to, at the place of x it will be r cos theta, at the place of y it will be r sin theta, and next it will be multiplied by r, and here dr d theta, means dx dy it will be replaced by r dr d theta, and this is like this. और इधर तुमको r और थीटा पे लिमिट फाइंड आउट करना रहेगा। याद है ये टूल, पता है, करेक्ट। सो एक्चुअली दिस विल गिव मी द वॉल्यूम। अगर एरिया निकालना रहेगा तो क्या आएगा, वो एरिया विल बी, योर फंक्शन इज 1, सो एरिया विल बी 1 dx dy, in polar coordinate it will be just 1 into r dr d theta. Can you see that? That will be just r dr d theta. तो मोस्टली पोलर कोऑर्डिनेट कब यूज़ करने का, जब दिखेगा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग टाइप क्वेश्चन है, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट देन यू शुड यूज पोलर कोऑर्डिनेट टू सॉल्व दैट। हेलो, आई थिंक पोलर पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इफ यू वांट देन आई कैन रिपीट इट। Polar coordinate, this was a special case, but this need not be always okay. Where suppose, let me give an example. Suppose this is a double integral, and it is question is given e raised to x plus 2y the whole square plus something x minus 4y the whole square, something like this. Suppose this is your function, correct, to find this double integral. So if it was e raised to x term, then that was okay. If it was linear term, then that was okay, but here something like this, x plus 2y the whole square is there, x minus 2y. So in this case your polar coordinate will also not work, correct. So then we will have any, we can substitute actually this x plus 2y equal to a something, or p I will say, and x minus 2y, sorry, that is not, that is 4y, x minus 4y equal to q. So this double integration will be something e raised to p square plus q square. Later on this can be converted in polar form, मतलब 2-3 बार हम लोगों ने चेंज ऑफ वेरिएबल किया एंड वी विल गेट माय फाइनल आंसर। सो ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे अभी आगे। सो मेन थिंग इज, अभी अपना टॉपिक क्या बचा है, पोलर कोऑर्डिनेट का। और डबल इंटीग्रेशन का एक और पार्ट है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। उसमें आई थिंक हम लोगों ने किया है, क्या क्या था एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल में, याद है सबको? इस पर भी आई थिंक 2 लेक्चर हुआ है अपने, बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, याद है? फर्स्ट इज़ एरिया, वॉल्यूम, वो तो है पता है अपने को। नेक्स्ट आता है मास, करेक्ट। व्हाट इज़ नेक्स्ट, याद है सबको? क्या 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 था? मास था, फर्स्ट मोमेंट्स था, एंड सेंटर ऑफ मास था। जो भी फर्स्ट मोमेंट्स है उसी को, फर्स्ट मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एक्स बार वाई बार से, आई थिंक एक्स बार वाई बार, एंड सेंटर ऑफ मास इज एक्स बार कॉम वाई बार, करेक्ट। दिस वाज एक पार्ट है, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है एप्लीकेशन का। एंड सेकेंड मोमेंट भी है, इसका मैं चेक करूँगा, अगर मेरे पास इसके वीडियोज़ होंगे देन आई विल अपलोड इट नाउ, बिकॉज स्टार्ट में अपलोड करना वॉज नॉट अ पॉइंट कि
और क्या था सेकेंड मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन था राइट आई थिंक दिस वाज ऑल थिंग डबल इंटीग्रेशन का नहीं था आई थिंक यस सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद नॉट ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन तुम्हारा फाइनली कंप्लीट होता है एक पार्ट बचा है दैट इज जनरल पोलर कोऑर्डिनेट वो मैं ट्रिपल के साथ कराऊंगा तो मे बी तुमको ज़्यादा समझेगा वो ट्रिपल के साथ ज़्यादा इजी होता है ये एंड मोमेंट और ये सब जो भी फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन वाला पार्ट दैट इज़ इन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑल्सो okay so let me start with triple integral so now I hope everyone can solve the double integration कोई भी function दिया हो you can find the double integration कोई भी bounded region है you just need to draw the graph and function से कोई लेना देना नहीं है जो भी bounded region है that will be easy in your question just you need to draw the graph you need to assign अगर क्वेश्चन में बोला है चेंज ऑफ वेरिएबल करो I1 I2 फाइंड आउट करो चेक वेरीफाई फिबनिस थ्योरम ये सब भी टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आई होप तुम लोग को याद हो स्टार्टिंग के मंथ में यही सब किया था हम लोगों ने ओके सो shall we start the triple integral ट्रिपल इंटीग्रल पे थियरी वेरी कुछ नहीं रहेगा बिकॉज इन दिस केस अभी हम लोग 3D तक तो हो ही गए थे अभी 3D के ऊपर हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते करेक्ट सो मे बी वील ट्राई टू सी फोर्थ डायमेंशन we draw इधर क्या रहेगा something like that let me just define it first then we will go okay so let D be a closed and bounded in R3 given by क्या रहेगा वो पहले ए बी और सी डी रहते थे अभी ए बी क्रॉस सी डी क्रॉस आर एस बोलता हूँ मैं नेक्स्ट ये अच्छा नहीं रहता मोस्टली सो आर एस दिस इज व्हाट दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन R3 this is a rectangular box in R3 correct now what do we have to find अभी करना क्या है उधर क्या करते थे हम लोग पार्टीशन लेते थे इधर भी अपने को क्या करना पड़ेगा तीनों का पार्टीशन लेना पड़ेगा डू यू सी दैट लेट मी जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ट्राई टू सी पहले हम लोग को क्या लेना पड़ता था सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ करना पड़ता था पार्टीशन ना अभी क्या करना पड़ेगा सी दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस अगर मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ ठीक है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्टली आई थिंक मुझे इस साइड बनाना चाहिए था सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज एक्स this is y this is z axis you see that कैसा भी बना सकते हैं मोस्टली द थिंग इज दैट एक्स वाई जेड एक्सिस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर x must be perpendicular to y if you have three mutually perpendicular then we can assign it as x y z now so जिसमें मैंने x एक्सिस यहाँ पे लिया ये लाइन में so for x axis this is my e this is my b boundaries of समझ रहे हैं तुम लोग को like this and for y axis it is my c it is my d for z axis do you see that this guy and this guy yes that is r or s on z axis it will be correct so अभी क्या करना है अपने को पार्टीशन करना है पहले क्या करते थे सिर्फ एक्स और वाई में पार्टीशन करते थे मतलब क्या मिलता था अपने को रेक्टेंगल मिलता था डू यू सी दैट अगर एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेस में मैंने पार्टीशन किया सो आई विल बी हैविंग रेक्टेंगल्स सब रेक्टेंगल्स मिलते थे बट अभी क्या करना है अपने को
z एक्सिस में भी पार्टीशन करा है, मतलब यही। तो कैन यू सी दैट क्या मिलेगा? कैन यू गेस? यस, एनीवन? व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट क्यूब्स और सब रेक्टेंगुलर बॉक्स, यू कैन से। हर जगह एक एक बॉक्स मिलेगा। इट इज़ लाइक आइस क्यूब बोल सकते हो, बहुत सारे आइस क्यूब को मैंने ऐड करके आई एम जस्ट मेकिंग लाइक अ बॉक्स। डायरेक्ट पहले क्या था, जस्ट अपने को जस्ट एक बेस निकालना था। सी, ट्राई टू कंपेयर इट विद दैट। in our case here it was just this bounded, this was just area, and इसको हम लोग flip करते थे and we need to find the volume। और now in this case अभी हम लोग इसी यही suppose this is my region, try to see, थोड़ा difficult रहेगा ये visualize करना, but try to just extend your notion of R2 to R3 and try to do that। in our case पहले हम लोग क्या करते थे, ये बेस में क्या करते थे, एक एरिया बनाते थे एंड उसको एक्सटेंड करते थे ना। नाउ अभी मेरे को R3 में आई नीड टू हैव अ रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप बनाना है एंड उसको एक्सटेंड करना है R4 में, करेक्ट? सो R4 मोस्टली हम लोग विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, बट तुम लोग को समझ रहा है क्या कि मतलब करना क्या है अपने को? सेम लाइक जो उधर करते थे, उधर क्या करते थे हम लोग R2 में एक्स वाई प्लेन को, सेम इसको मैं क्या करता था, इधर मेरा फंक्शन है, मैं क्या करता था, सेम यही पार्ट ऊपर लेता था, सेम यही पार्ट, करेक्ट? सो वॉल्यूम अंडर ये सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम कवर हुआ है इसके अंदर, दैट विल गिव मी माय, yes, that will give me my actual that will give me the volume of that function in that close bound। but here in our case अभी मेरे को क्या करना है, this is a bounded region एंड उसके अंदर करना है अपने को। सो तीन पार्टीशन रहेंगे, P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 एंड सेम, लेट मी जस्ट राइट इट। सो मेरा पार्टीशन क्या रहेगा, P क्या रहेगा मेरा, P विल बी P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 बी द पार्टीशन ऑफ D करेक्ट है। जिसमें P1 क्या है, एक्स एक्सिस का पार्टीशन, एक्स एक्सिस मीन्स ए बी, क्लोज इंटर ए बी का, P2 इज़ फॉर CD एंड नेक्स्ट इज़ फॉर RS, करेक्ट? नेक्स्ट इधर भी सेम वही क्या करना पड़ेगा अपने को, यस, लेट जैसे उसमें किया था, लेट द बॉक्सेस, व्हाट इज द टाइम, 10:16 वी आर हैविंग सम टाइम, let the boxes be denoted by R1, R2, Rn with volume delta V1, delta V2 अप टू डेल्टा Vn। सेम उधर हम लोगों ने क्या किया था, डेल्टा A1 डेल्टा A2 लिया था, करेक्ट? और हम लोगों ने इसको कैसे किया था, हम लोगों ने ऐसे रेक्टेंगल्स को लिया था जो कम्प्लीटली लाई इनसाइड दैट है, दैट रीजन हो। इधर भी क्या रहेगा, ऐसे वॉल्यूम को लेंगे हम लोग, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स को लेंगे दैट आर कम्प्लीटली इनसाइड दैट। सो व्हाट विल बी माय एरिया अगर बोला तो दैट विल बी फंक्शन एट दैट पॉइंट एक्स वाई जेड and into delta vi, something like this, xi yi zi, correct? Yes, same you can define UPF LPF also, जो कि ये सब अपने को दिया नहीं है इधर अपने सिलेबस में, ये सब जस्ट बोला है कि डबल इंटीग्रेशन पढ़ा ना। सो सिमिलरली यू कैन विजुअलाइज द नोशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, उधर क्या होने वाला है ऐसा तुमको समझना चाहिए, दैट इज व्हाट दे वांट टू से। नेक्स्ट आता है फिबनी थ्योरम। फिबनी थ्योरम, इधर भी फिबनी थ्योरम क्या बोलेगा और ट्रिपल इंटीग्रल, सेम वही, इफ़ योर एफ इज़ कंटिन्यूस। सो मतलब मेन तुम्हारा ये जो सिलेबस है दैट इज़ बेस्ड ऑन डबल इंटीग्रल, बाकी जो है ट्रिपल इंटीग्रल का वो जस्ट डायरेक्ट बोलेंगे फॉलो होता है। एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन रेक्टेंगुलर बॉक्स डी इक्वल टू ए बी, और डी जस्ट लिखता हो समझ जाना, दैट इज़
AB, CD and RS. Then what? ट्रिपल इंटीग्रल फिबनी थ्योरम क्या होता है? ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगल होता तो ये क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन होता है ओवर रेक्टेंगुलर बॉक्स है, so it will be A to B, C to D, R to S, and here it will be function of x, y, z, and here it will be क्या रहेगा? पहले dz, dy फिर dx. Do you see that? पहले R to S है तो पहले dz फिर dy फिर dx, like that. करेक्ट. नेक्स्ट इधर भी रहेगा ट्रिपल इंटीग्रल और पहले एक ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. जैसा अगर दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल वी आर गिवन टू सॉल्व सट एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सिंपली लेते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड एंड दिस इज बाउंडेड बाई डी वेयर डी इज डिफाइंड एज 0,1 multiply by 1 2 3 multiply by 2 to 4 like this. करेक्ट. सो कैन समबडी टेल मी ये इसका वैल्यू क्या आएगा? इंटीग्रल किस पे डालो? दैट इज व्हाट हियर यू हैव टू यूज फिबनी थ्योरम. फिबनी थ्योरम क्या बोलता है? व्हाट इज योर फिबनी थ्योरम? व्हाट डज दिस से? अगर मैं यहाँ पे अंदर dx लिख रहा हूँ, करेक्ट है, तो मेरे को पहले x का लिमिट लिखना रहेगा. x का लिमिट क्या है? 0 to 1. यू सी दैट? तो मतलब पहला इंटीग्रल ये सॉल्व करना रहेगा. योर फंक्शन इज x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़. नेक्स्ट सपोज अगर मैं डी वाई लिख रहा हूँ तो डी वाई मतलब ये मिड में आएगा. मिड में डी वाई का लिमिट क्या है? 1 to 3. राइट, 1 to 3 हियर. नेक्स्ट डी जेड अगर लिख रहा हो तो वो क्या आएगा? 2 to 4. समझा क्या? सो डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते 0 to 1, 1 to 3, 2 to 4. यू जस्ट नीड टू सी दिस डी एक्स डी वाई डी जेड. अगर वैसा अगर तुमको लिखना होता तो ये क्या आता? दैट इज़ 0 to 1, 1 to 3, 2 to 4, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. तो यहाँ पे ये क्या आता? कोई बताएगा मुझे? ये केस में दिस ऑर्डरिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इधर एक्स वाई जेड का टर्म नहीं है ना. सो दिस ऑर्डरिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट हियर. सो यहाँ पे क्या आता? कोई बताएगा? Here first 2 to 4 is there, so this is on z axis, so first dz आएगा. Next 1 to 3 is there, next dy आएगा. 0 to 1 is there, dx आएगा. Do you see that? Mostly बहुत लोग क्या करते हैं? They just in the rush they will just write triple integration 0 to 1, 1 to 3, 2 to 4 and यहाँ पे dx dy dz लिख देते हैं. तो that is wrong thing. अगर dx dy z लिखा तो मतलब क्या x का लिमिट तुम 2 to 4 बोल रहे हो? दैट इज़ नॉट ट्रू. सो पहले ये डिसाइड करने का इधर, फिर ये लिखने का. अगर तुम डी एक्स डी वाई डी जेड लिख रहे हो तो पहले डी एक्स का लिमिट लिखो, फिर ये कंप्लीट होने के बाद डी वाई का लिमिट लिखो, फिर डी जेड का लिमिट लिखो. करेक्ट. सिमिलरली अगर ट्रिपल हो गया, अभी फोर्थ इंटीग्रल आया, तभी भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे. फिबनी थ्योरम क्या बोलता है? ओवर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो जो भी पहले सॉल्व कर रहे हो उसका लिमिट पहले आएगा, फिर उसके बाद उसका लिमिट, फिर उसका लिमिट. दिस इज व्हाट फिबनी थ्योरम सेज. और इधर हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये सबको अगर सफल किए तो अकॉर्डिंगली ये भी होएगा. ठीक है. हेलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेम आएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर जनरल बाउंडेड रीजन. जनरल बाउंडेड रीजन में अपने को क्या चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए. सेम थिंग इधर भी चेंज ऑफ वेरिएबल आएगा. इस पे करेंगे क्वेश्चन, वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चन रहेगा. नेक्स्ट इज दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल. ये सब जस्ट किसी का प्रूफ नहीं है, ये सब जस्ट बोलता है. उसमें सिलेबस देखोगे तो तुम लोग बोला है जस्ट यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, जो भी पढ़ा है डायरेक्ट इधर करना है. सो प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? अल्फ़ा एफ का क्या आएगा? अल्फ़ा बाहर, ट्रिपल इंटीग्रल एफ. करेक्ट. ये फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट एफ प्लस जी लिया अगर मैंने, ट्रिपल इंटीग्रल, सो दैट विल बी ट्रिपल इंटीग्रल एफ प्लस ट्रिपल इंटीग्रल जी. ओके. नेक्स्ट व्हाट? एफ प्लस जी हुआ, अल्फ़ा एफ हुआ. अगर दो रीजन का यूनियन या नॉन ओवरलैपिंग है, दैट मीन्स व्हाट? इफ योर D is D1 union D2 and they are non overlapping,
सो क्या आएगा, दिस इज सेम एज, अगर ग्राफिकली देखो रियल के केस में या वो केस में, सो इसका मतलब क्या हुआ, दो बाउंडेड है, बाउंडेड बाय दिस एंड बाउंडेड बाय दिस, दिस इज माय फर्स्ट रीजन, दिस इज माय सेकंड रीजन, दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या आएगा मेरा एरिया अंडर द कर्व, दिस विल बी एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, एरिया अंडर द कर्व. Same here also, if you are given D is the union of D1 and D2, where D1 and D2 are non-overlapping, disjoint, that is important. So triple integral क्या आएगा, over D1 plus triple integral over D2, over D1 plus triple integral over D2. ठीक है. अभी can I find volume using triple integral? Now you guys will see something. See, अभी मेरे को बताओ, डबल इंटीग्रेशन था, करेक्ट है, दैट वाज डबल इंटीग्रेशन, मतलब ये डबल इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई समथिंग लाइक दैट. सो इसका वैल्यू क्या डायरेक्ट मेरे को वॉल्यूम आता था क्या, दिस इज माई वॉल्यूम ओनली, डबल इंटीग्रेशन का मतलब वॉल्यूम ही था ना, करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन सेज यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल कैन यू फाइंड वॉल्यूम, यस यू कैन. यूजिंग डबल इंटीग्रेशन हम लोग एरिया कैसे निकालते थे, फंक्शन को वन पुट करके ना, if I put 1 here then we used to get the area. Now अभी मैं वॉल्यूम से भी ऊपर चले गया हूँ, so what I have to do, फंक्शन को वन पुट करना है, correct. So that will be something like this, 1, it will be dz dx dy. So whatever this will be, this will be my volume. ये मोस्टली क्या रहेगा, ये जो रहेगा 0 to f of x comma y रहेगा. So this will give me double integration over of f of x comma y dx dy, that is your volume. So I am coming from triple integral, यहाँ पे वन पुट करने पे मेरे को वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, ये ट्रिपल इंटीग्रल इज समथिंग एल्स. अगर फंक्शन को वन पुट किया तो मैं इसमें आ रहा हूँ, फिर डबल इंटीग्रेशन में अगर ये फंक्शन को वन पुट किया तो आई एम गेटिंग एरिया. सो दिस इज माई एरिया, दिस इज माई वॉल्यूम, एंड दिस इज वॉल्यूम से भी बड़ा द नेक्स्ट मोशन जो भी बोलो उसको, करेक्ट. जैसे हम लोग इसमें टोपोलॉजी में एन बॉल्स बोलते हैं उसको, अगर रेक्टेंगल्स है, सॉरी सर्कल है, इन आर है तो इट इज़ इंटरवल, इन R2 है देन इट इज़ सर्कल, R3 है स्पीयर, देन आगे हुआ तो उसको एन स्पीयर बोलते हैं, दैट्स इट, एन बॉल एन स्पीयर जो भी बोलो, ठीक है. ओके, सो चेंज ऑफ वेरिएबल एंड ये ट्रिपल इंटीग्रल का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इधर तुमको चेंज ऑफ वेरिएबल किस पे करना है, ये तीनों पे. यू सी दैट इधर भी फंक्शन पे कोई रिलेशन नहीं है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका डायग्राम मतलब अपने को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, योर रीजन, थ्री डायमेंशनल रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, देन वी हैव टू डिसाइड द लिमिट, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. मोस्टली उस पर क्वेश्चन आता है, चेंज ऑफ वेरिएबल पे आता है क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में, अगर देखो कहीं पे तो, ठीक है.